Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you all? I hope you will be safe and sound. I am Abdul Rahman and you are watching my YouTube channel. Thank you so much for watching my previous videos and for sharing and liking them. So, I don't like to waste your time. I want to go to the topic of the day. Let's get started. Today our topic is direct and indirect speech. इसको उर्दू में कलाम बिला वास्ता और कलाम बिल वास्ता, वो कलाम जिसके अंदर कोई वास्ता इस्तेमाल ना हुआ हो उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। वो कलाम जिसमें कोई वास्ता इस्तेमाल ना हुआ हो उसको कलाम बिला वास्ता कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच उसको कहते हैं। और जिस कलाम के अंदर कोई वास्ता इस्तेमाल हुआ हो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। So dear student, there are two ways of making reports. If it consists of the actual words of the speaker, so it is in the direct speech, and if it doesn't consist of the actual words of the speaker, it is in the indirect speech. So here is an example for your observation. I hope you will understand. The doctor said to me, I am too busy to test your eyes just now. The doctor said to me, I am too busy to test your eyes just now. So this is an direct speech. You know, this speech quotes the actual words of the speaker, which is a doctor. In this sentence, a doctor says to a person that he is busy and he is not able to check his eyes at the present time. So, look at this. This sentence has two parts. One part is not enclosed within inverted commas, while the other part, and part number second, is enclosed within inverted commas, and that part is this. So it has two major parts. One part is not enclosed within inverted commas, while the remnant part is enclosed within inverted commas. So this part, which is not enclosed in the inverted commas, is called reporting speech. Reporting speech. And the part which is enclosed within inverted commas is reported speech. Now I am going to change this direct speech into indirect speech. So look at this. The doctor said to me that he was too busy to test my eyes just then.
So this is indirect speech. In this sentence, you can notice that this sentence doesn't quote the actual words of the speaker, who is a doctor. So you can look, the doctor said to me that he was too busy to test my eyes just then. यहाँ पे आप देख लें कि 3 किस्म की तब्दीलियाँ हैं। इसमें तब्दीली हुई है, ये तब्दीली हुई है, और यहाँ पे ये देख लें, ये चंद तब्दीलियाँ हैं। इसको आप देख ले गौर से। सो द इनडायरेक्ट स्पीच इज द डॉक्टर सेड टू मी दैट ही वाज टू बिजी टू टेस्ट माय आइज़ जस्ट देन। ये भी तब्दीली है, एडवर्ब की जो तब्दीली है वो यहाँ पे हुई है। तो इसको आप देख लें, यहाँ पे 3 किस्म की बल्कि 4 किस्म की चेंजिंग्स हैं जिनको अभी देखना है। सो दीज चेंजिंग्स आर मेड अकॉर्डिंग टू सर्टन रूल्स। 4 किस्म की तब्दीलियाँ हुई हैं। इन्वर्टेड कामास डिसअपीयर्ड। नंबर 1, इन्वर्टेड कामास एज वेल एज सिंगल कामा डिसअपीयर्ड। सेकंडली, प्रोनाउंस I, your has changed and to he, एंड माई। आपने देख लिया कि यहाँ पे आई और यू को तब्दील कर दिया गया है, ही और माई के अंदर तब्दील किया गया है। 2 किस्म की तब्दीलियाँ हुई। तीसरी किस्म की तब्दीली ये है कि वर्ब एम को वाज में चेंज कर दिया गया है। एम को वाज के अंदर चेंज कर दिया गया है। नंबर 4 तब्दीली यही है कि जो एडवर्ब हैं, एडवर्ब नाउ हैज़ चेंज्ड इनटू देन। Number 1, inverted commas disappeared. Secondly, pronouns I and your has changed into he and my. Thirdly, verb am has been changed into was. Adverb now has changed into then. अभी आप जहन में 3 चेंजिंग है, सारी 3 रूल्स हैं, उसको आप जहन में रख लें। अगर reporting speech present और फ्यूचर में हो तो फिर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर वर्ब में किसी किस्म की तब्दीली नहीं होगी। एक दफ़ा फिर सुन लीजिएगा। अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो टेंस इस्तेमाल हुआ है, ज़माना इस्तेमाल हुआ है, अगर वो फ्यूचर है या प्रेजेंट है, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वर्ब होगी उस वर्ब के साथ किसी किस्म की तब्दीली नहीं होगी और उसी टेंस के
अंदर आएगा, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट आएगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर आएगा। मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पर शी सेज आई एम ए गर्ल। शी सेज I am a girl. This is a direct speech. Now I am going to change this speech into indirect speech. She says that she is a girl. आपने देख लिए कि इन्वर्टेड कामा डिसअपीयर्ड हो गई है, उसके साथ साथ टेंस उसी तरीके से सेज आ गया है और साथ ही जो एज है ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके अंदर जो तब्दीली है वर्ब की वो नहीं हुई। शी सेज आई एम अ गर्ल, शी सेज दैट शी इज़ अ गर्ल, दिस इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। सो ये जो रूल हैं इसको आप अपने जहन में रख लें। दूसरी बात आप जहन में ये रख लें कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में स्पीच पास्ट में हो मगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई आलमगीर हकीकत हो तो भी इसके अंदर वर्ब की किसी किस्म की तब्दीली नहीं होगी। आप एग्ज़ाम्पल को देख लीजिएगा। और डायरेक्ट स्पीच है ही सेड गॉड इज़ वन। इसके अंदर एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, जनरल ट्रुथ है इसके अंदर। इस वजह से इसकी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो ये डायरेक्ट स्पीच की एग्ज़ाम्पल आपने देख लिए। अभी इसको इनडायरेक्ट करते हुए देख लेते हैं। ही सेड दैट गॉड इज़ वन। सेम उसी तरीके से आ गया। इन्वर्टेड कामा डिसअपीयर्ड हो गई है, बाकी डेट का इस्तेमाल हुआ है। और तो जैसे कि स्टूडेंट आपने देख लिया कि हमने आलमगीर हकीकत वाले फ़िक्रे को डायरेक्ट में भी देख लिया और उसके बाद हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके भी आपको दिखा दिया। तो डायरेक्ट स्पीच ये है ही सेड गॉड इज़ वन। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर ही सेड दैट गॉड इज़ वन। तो यहाँ पे जो वर्ब की तब्दीली है इनडायरेक्ट में जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई। ये दूसरा रूल आपने देख लिया है। अभी एक आप और बात जहन में रख लें कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मंदरजा बाला तब्दीलियाँ होंगी। आप इस ग्राफ को देख लीजिएगा। इसमें ये होगा कि दिस को डेट में चेंज करेंगे, इसके अलावा मे को माइट के अंदर चेंज करेंगे, इसके अलावा एगो को बिफोर में चेंज करेंगे, नाउ को दिन में चेंज करेंगे, टुडे को
दैट डे में चेंज करेंगे। इसके अलावा यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज करेंगे। टुमारो को नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे। ये आपने देख लिए। इसके साथ और जो तब्दीलियाँ हैं वो कैन को कुड, शल को शुड, दिन सो में आ जाएगा। और इसी तरीके से मज़ीद भी कुछ तब्दीलियाँ हैं प्रोनाउंस की जो होंगी। तो आपने देख लिया कि दिस को दैट, में को माइट, एगो के बिफोर, नाउ को दिन, टुडे दैट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज होगा, टुमारो नेक्स्ट डे में द नेक्स्ट डे में चेंज होगा। और इस तरह के लास्ट नाइट को प्रीवियस नाइट में चेंज करेंगे। और इसी तरीके से सो ऑन भी काफ़ी तब्दीलियाँ हो सकती हैं। तो इसको आप अपने जहन में रख लें। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपने किसी हद तक काफ़ी सिखलाई की होगी। अगर आप इस सिखलाई को जारी रखते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ही आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप डायरेक्ट स्पीचेस को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करना सीख जाएंगे। So if you find this video useful for yourself, so share this video with your friends, like my channel and share my channel. Thank you so much for watching. See you next. Bye bye.